Good afternoon, everyone. This is CA Seeta Rajani, sole proprietor K Seeta Rajani and Associates. I'm currently the managing committee member of Bhanpur branch of BIRC of ICAI. My portfolio is ICASA chairperson. I must thank CA Vivek Khurana sir and entire crew of CS Sansaar for coming up with such wonderful concept. I must thank the entire team indeed for the wonderful work that they had been doing for quite some time. Coming to my session, the topic is life lessons from financial accounting. An overview. You must be wondering, what lessons can financial accounting teach you about life? If you can pause for a while and go deep into the concepts, you'll definitely find a similarity between the concepts of financial accounting and also between life. लाइफ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच काफ़ी सिमिलैरिटी है, ये आप फाइंड आउट करोगे. लेट्स फाइंड आउट. लेसन नंबर 1, conservatism concept. Account for all possible losses, but don't record any profit that is not yet realized. This is something that we study in our plus 2 level itself, so I'm not exactly explaining it again. Let's straight away go to the life lesson hidden in it. Premature celebrations and complacency are big no-no. कई बार हम लोगों को ये करते हुए देखते हैं, इंटरव्यू बस देकर आते ही हैं और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जॉब तो मिलने ही वाली है, मुझे नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी, और मिठाई वगैरह भी बांट देते हैं. ये गलत है. यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. लाइफ इज एक्सट्रीमली अनसर्टेन. और जितना कोविड ने हमें ये सिखाया है ना लाइफ की अनसर्टेनिटी के बारे में, शायद ही किसी और चीज़ ने सिखाई हो. सो प्रीमेच्योर सेलिब्रेशंस एंड कंप्लेसेंसी आर बिग नो नो. हमें ये कभी नहीं करना चाहिए. और कई लोग एडवांस हैप्पी बर्थडे, एडवांस दिवाली विश कर देते हैं. ये गलत है. क्या पता किस मोमेंट पे क्या हो जाए. तो you should never ever take anything for granted. Let's move on to lesson number 2. Self-generated goodwill should not be shown in the books of account. ये भी आपको पता होगा कि अकाउंटिंग बोलता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना चाहिए. But if it is purchased goodwill, you can jolly well show it in your books. Why is it so? Because that is your self-evaluation. It doesn't count for anything. But when you purchase something, it's market-driven value. Similarly, once we come to the life lesson similar to this concept, we will see that self-aggrandizement doesn't count for much. कई लोग मिलते रहते हैं, अपनी मुंह मियाँ मिट्टू करते रहते हैं. बिल्कुल सही नहीं है ये चीज़. हम खुद ही अपने बारे में बोलें, ये बिल्कुल गलत है. Suppose I were to claim myself as a good singer, as a good dancer, without any certificates to show, without any evidence to substantiate my claim, it doesn't count for anything. At the end of the day, you'll become a laughing stock. So better don't talk about anything that you're capable of. You better focus on your work. Your work will do the talking for you. Let's proceed towards lesson number 3. The joint costs are to be borne by the joint products in a suitable and rational manner. आप सबको पता होगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ. Joint products are such products which are of equal importance, which are obtained simultaneously from a common input. जैसे crude petroleum हो गया. When you process this crude petroleum, you get petrol, diesel, kerosene at different stages. All these products are extremely important. So these products are known as joint products. And the joint costs that are borne till the split of point are supposed to be distributed among these joint products in a suitable and rational manner. What is the life lesson hidden in it? The responsibility of the parents should be borne by the children. Parents work so hard for the children. कितना मतलब कुछ करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं to give a good education, to give a good life to the children. आजकल तो पेरेंट्स कुछ भी देने के लिए तैयार होते हैं. सेपरेट रूम फॉर स्टडीज, लैपटॉप, स्मार्टफोन, और बहुत ही बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिल भी करा लेते हैं, बिकॉज दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू टू इंश्योर दैट यू गेट अ बेटर लाइफ. And when you indeed become somebody, when you go your separate ways, you and your siblings go your separate ways for greener pastures, you should always remember that you are the outcome of the sacrifices of your parents. उन्होंने काफ़ी कुछ आपके लिए किया हुआ है और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके
केयर करो। ये नहीं होना चाहिए कि पासिंग ऑन द बक, तेरी माँ, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप अपने पेरेंट्स का प्रॉपर केयर करो। नाउ लेसन नंबर 4, वन शुड ऑलवेज लुक फॉर इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हेन इज एन एसेट सपोज टू बी इम्पेयर्ड। जब किसी एसेट का रिकवरेबल वैल्यू उसके बुक वैल्यू से कम हो जाता है, हम बोलते हैं कि एसेट इज इम्पेयर्ड। Suppose the recoverable value of an asset is say 80,000 and the book value is 1 lakh. That means the recoverable value is lower than its book value, and assets are not supposed to be carried at a value higher than its recoverable value. So the moment you got to know that book value is 1 lakh and recoverable value is 80,000, that means your asset is impaired. You should immediately revise the book value by recognizing an impairment loss of 20,000. Okay? कैसे पता चलेगा कि एसेट इम्पेयर हुआ है? You should always check for such indicators of impairment. These indicators could be external, could be internal also. External indicators could be increase in interest rates or change in market trend, change in taste of customers. Internal impairment, an internal indicator of impairment could be like some damage to the asset. So these are the indicators. You should always look for those things. Now, the life lesson hidden in it. One should always evaluate oneself and should not rest on one's laurels. लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमने तो काफ़ी कुछ किया हुआ है, अब हमारी कोई केयर नहीं करता। आपने पास्ट में क्या किया था वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। इट्स अ सॉर्टेड स्टेट ऑफ अफेयर्स, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है। आपने पास्ट में क्या किया वो मैटर नहीं करता। आपका जो जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो मैटर करता है कि कितना आपने खुद को अपडेट किया हुआ है। हो सकता है कि आपका नॉलेज अच्छा रहा हो पास्ट में, लेकिन जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हुए हैं, आप अगर उसके साथ अपडेट नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। और जब भी हम ये बात करते हैं ना, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल दैट कम्स टू आवर माइंड इज नोकिया। Nokia was the market leader. There were enough impairment indicators, but they just, didn't care to check for them. Ultimately paid the price. तो यही होता है कि आपको ना हमेशा खुद को अपडेट करते रहना होता है, खुद को इवेल्युएट करना होता है। यू कांट एफर्ट टू रेस्ट ऑन योर लॉरल्स, यू कांट बास्क इन योर पास्ट ग्लोरी। लेसन नंबर 5, while reversing impairment loss, one should bring the value of the asset back to where it would have stood had we not recognized any impairment loss. Impairment loss की बात की हमने, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम ये देखेंगे कि impairment loss का रिवर्सल हम कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो कैसे। जब हमने impairment loss रिकॉग्नाइज किया, कुछ दिन हमने एसेट यूज़ किया, फिर आपको पता चला कि एसेट का जो रिकवरेबल वैल्यू है अभी वो डिसेंट है, अभी वो काफ़ी अच्छा है। नाउ यू वांट टू रिवर्स द इम्पेयरमेंट लॉस। तो अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग ये बोलता है कि यू शुड ब्रिंग द बुक वैल्यू बैक टू वेयर इट वुड हैव स्टूड। अगर इम्पेयरमेंट लॉस आपने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं होता तो इस पॉइंट पे एसेट का बुक वैल्यू कितना होता, आप वो कैलकुलेट करो और बुक वैल्यू को वापस वहाँ लाओ, सो दैट नॉर्मल इज रिस्टोर्ड। अब ऐसे पता चलेगा, जैसे बुक्स में हम देखेंगे कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज हुआ ही नहीं था, तो यू शुड रिस्टोर द नॉर्मलसी। दैट्स व्हाट इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल इज ऑल अबाउट। अब देखते हैं कि इसमें लाइफ लेसन क्या है। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। कई बार दोस्तों के बीच, फैमिली मेंबर्स के बीच मनमुटाव हो जाता है, रिश्ते में खटास आ जाती है, फिर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बहुत गिला शिकवा मन में रखते हैं। लेकिन अगर ये जो इंसान है वो वापस आता है, अपनी गलती मानता है और वापस से मतलब पहले की तरह सब कुछ करना चाहता है, तो आपको इनवाइट करना चाहिए। ओके, तो क्योंकि वो गलती मान के आ रहा है ना आपके पास, तो रिश्ते को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सो दिस इज द लाइफ लेसन हिडन इन इट। यू शुड कंटिन्यू एज तो कभी कोई मनमुटाव हुआ ही नहीं था। Lesson number 6. Deferred tax assets or liabilities reverse in future, subject to conditions, of course.
Deferred tax asset, deferred tax liabilities are covered under AS 22. AS 22 डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज की बात करता है। अगर हम उसे सिंपल तरीके से हम इसे समझें तो डेफर्ड टैक्स में क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट में क्या होता है कि पे नाउ सेव लेटर, लेकिन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज में सेव नाउ पे लेटर। ओके, हम इसकी लाइफ लेसन समझते हैं। हार्ड वर्क इन द प्रेजेंट शैल रिवर्स इन गुड टाइम्स इन फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। स्पेशली सीए स्टूडेंट्स, उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि दिवाली के कुछ ही दिनों के बाद नवंबर के एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी कभी बीच एग्ज़ाम से दिवाली आती है। बाकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सीए का जो स्टूडेंट है वो हार्ड वर्क कर रहा होता है। उसे मतलब मन में फीलिंग आती होगी सब एंजॉय कर रहे हैं, मैं जो हूँ ये पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसे केस में भी, तो उस वक्त थोड़ा बुरा लगता होगा। लेकिन ये जो हार्ड वर्क है उनका, ये फ्यूचर में उनके फेवर में ही कन्वर्ट होने वाला है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। वैसे ही अगर रिवर्स हम देखें तो कुछ लोग ना शुरुआत में काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ लीड करते हैं, उस चीज़ की उन्हें आदत पड़ जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली हैं। तो वो मतलब उन प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे फिल्मों में होता है, हाफ टाइम तक क्या होता है, इंटरवल तक क्या होता है, हीरो जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करता रहता है, विलन का बोलबाला होता है। जैसे ही इंटरवल खत्म होता है, सेकंड पार्ट शुरू होता है, विलन की सिचुएशन बद से बदतर होती रहती है, हीरो का सिचुएशन बेहतर होता रहता है। तो लाइफ में भी यही होता है कि अभी आप हार्डवर्क कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आगे ज़रूर मिलने वाला है। अभी आप अगर रिलैक्स कर रहे हो ये सोच के कि बाकी मतलब आगे टाइम है हम संभाल लेंगे, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ जाए। लेसन नंबर 7, all direct expenses incurred in relation to an asset are to be capitalized. AS 10 कहता है कि all expenses which are incurred to bring the asset to its present location and condition are direct expenses and these expenses are to be capitalized. अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, जो ट्रायल रन एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस काउंट करना है, और ये सारी चीज़ें हमें कैपिटलाइज करना है। और जैसे ही ये एक्सपेंसेस हम कैपिटलाइज करते हैं, एसेट का कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, एसेट का वैल्यू जो है वो बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि इसमें लाइफ लेसन क्या है। The sacrifices of near and dear, the timely help that you receive ultimately increase your worth, and one should always acknowledge that. When you have reached a certain stage in your life, you should always remember that it is ultimately the outcome of a lot of sacrifices, a lot of timely help done by a lot of people. ऐसा बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए कि हमने जो कुछ भी किया अपने बलबूते पे किया, कि किसी ने कोई मदद नहीं की थी, एकदम अपने ही बल पे हम आगे यहाँ पे। अगर हम ऐसा सोचते हैं ना तो बहुत गलत है, क्योंकि किसी ना किसी का कंट्रीब्यूशन, किसी ना किसी का सैक्रिफाइस ज़रूर रहा होगा आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अब इस मुकाम पे पहुँचे हो। ओके, तो वो सारे सैक्रिफाइसेस आपका वैल्यू इंक्रीज किया हुआ है, आपको हमेशा वो एक्नॉलेज करते रहना चाहिए। Lesson number 8. When an asset is disposed of at a loss, it should first be met out of the revaluation reserve created for the same. Balance, if any, shall be debited to P&L account. जब एक एसेट के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ होता है और फिर हम वो एसेट बेचते हैं और सपोज लॉस हुआ, तो वो लॉस पहले हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करना है, फिर भी लॉस बचा हुआ है तो हम P&L डेबिट करते हैं। This is what accounting says. Now what's the hidden life lesson in it? When we face setbacks, we should always remember those occasions where the rub of the green was with us. We tend to mourn a lot. We tend to, feel sorry for ourselves. एक सेल्फ पिटी आ जाती है जब कभी भी कुछ गलत होता है हमारे साथ, हमें ये लगता है कि हम ही अनलकी हैं। पर उस टाइम पे हमें वो सारे मोमेंट्स याद करने चाहिए व्हेन वी वर वेरी लकी। अगर हम ये करें ना, हम ये रियलाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स इवन आउट। ओके, जब कभी भी ये लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, वो सारे ओकेजन्स याद करने चाहिए जब लक हमारे फेवर में था। रब ऑफ द ग्रीन विथ यू का मतलब है कि लक आपके फेवर में था, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता
कि कोई इंसान हमेशा अनलकी हो या हमेशा लकी ही रहे। लक और बैड लक ये चलता रहता है। एट द एंड ऑफ द डे थिंग्स इवन आउट। लेसन नंबर 9, expenses that don't give enduring benefits are to be charged off, which means debited to revenue. जो एक्सपेंसेस हम करते रहते हैं, कोई रिपेयर हो गया which doesn't really give any enduring benefit as such, which doesn't enhance the productivity of the asset, we charge it off to the P&L. अब इसमें लाइफ लेसन क्या है? Negative emotions that don't give any benefit should be dispensed with. अभी जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस हम अपने मन में पालते हैं, ग्रज, एंगर, जेलसी, ये सारी चीज़ें दिल में रख के घूमते हैं। You know, ultimately these things have an impact on your health too, because mental health and physical health are pretty closely linked to one another. ये जैसे बहुत साल तक आप अगर अपने मन में रखेंगे तो ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट करेगा और इससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला। तो नेगेटिव इमोशंस आर सपोज टू बी डिस्पेंस्ड विद, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारे इमोशंस होंगे, गुस्सा आएगा, जेलसी होगी, ये सब होगा, लेकिन ज़्यादा दिनों तक हमें इसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए। इन चीज़ों से जितनी जल्दी हम छुटकारा पाएंगे उतना हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं अपना फाइनल लेसन, लेसन नंबर 10। Smallest pool of assets bring cash flows that are different from the other cash flows are known as CGU, which is known as cash generating unit, and the cash flows cannot be attributed to just one single asset. ये चीज़ अगेन आप पेज 28 में ही देखोगे। कैश जनरेटिंग यूनिट वो होता है, मतलब पूल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को पूल किया जाता है और वो एसेट्स टुगेदर रेवेन्यू लेके आते हैं, कैश फ्लोज लेके आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक ऑडिटोरियम का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत बड़ा सा हॉल है, सिर्फ हॉल तो आपको रेवेन्यू फेच नहीं करेगा, हॉल के साथ साथ आपको बहुत सारे इंस्टॉलेशंस करने पड़ेंगे, चेयर्स वगैरह आपको डालने पड़ेंगे, स्क्रीन वगैरह, एलसीडी स्क्रीन वगैरह आपको रखना होगा, प्रोजेक्टर्स, ये सब होंगे, तभी वो एक ऑडिटोरियम कहलाएगा और आप रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेंगे। जब रेवेन्यू आएगा, आप ये तो नहीं बता पाओगे कि ये रेवेन्यू जो है ये फर्स्ट रो के चेयर से आया है या फिर ये एसी से आया है या फिर ये मतलब ये पर्टिकुलर स्क्रीन से आया है, ऐसे आप नहीं बोल सकते। ये सारी चीज़ें जब एक साथ जुड़ी तब एक बहुत अच्छा कैश जनरेटिंग यूनिट बना और आपका अच्छा खासा रेवेन्यू आया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें लाइफ लेसन क्या है। When we join forces, we get spectacular results, and that success cannot be attributed to just one single person. जब हम साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये सक्सेस सिर्फ इस इंसान की वजह से आया है, ये टीम वर्क होता है। जब हम एक टीम बनकर कोई काम करते हैं बहुत ही अच्छे इरादे से, अच्छे फोकस से, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और मैं खुश हूँ कि मेरा जो ये सेशन है वो ख़त्म हो रहा है इस पर्टिकुलर थीम में कि अगेन ये सीए संसार के साथ ही मैच करता है कि सीए संसार जो है वो नाम ही है संसार, सारे सीएस को और बहुत ही सारे कमिटेड इंडिविजुअल्स को लेकर ये फ्रेटर्निटी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और इन सारे लोगों का ही इफेक्ट है कि आज मेरे जैसे एस्पायरिंग स्पीकर्स अभी बोल पा रहे हैं, आप सबको एड्रेस कर पा रहे हैं। उम्मीद है और भी बहुत सारे स्पीकर्स आगे आएंगे और सीए संसार के इस एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेंगे और बहुत आगे जाएंगे, अपने फ्रेटर्निटी के लिए वर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं अगेन थैंक करना चाहूँगी सीए विवेक खुराना सर को, सीए संसार की पूरी टीम को और मैं एक और बार बोलना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर आवर फ्रेटर्निटी। और कोई अगर मुझसे संपर्क करना चाहें इस प्रेजेंटेशन के रिलेशन में तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी on this mail ID or this phone number. Thank you so much for this opportunity.